کسی پر عمل کر رہے ہیں. عیسائی کسی اور ملک کے اندر ہے، انہوں نے کسی اور چیز کو دین بنایا ہے. لیکن دین اسلام دنیا کے جس چپے میں بھی جائے تمام تعلیمات آپ کو ایک طرح کی ہی ملے گی. قرآن مجید پاکستان کے اندر ہے، سعودی عرب کے اندر ہے، دیگر ممالک کے اندر ہے، جہاں بھی جائیں گے بالکل آپ کو اسی طرح کا ملے گا. آپ امریکہ کے اندر جائیں آپ کو اور انجیل ملے گی، پاکستان کے اندر اور ملے گی، کسی ملک کے اندر اور ملے گی، یورپ کنٹریز کے اندر جائیں اور ملے گی. دین اسلام محفوظ دین ہے، ہمارا دین آسان دین ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بڑی آسانیاں رکھی ہیں. بعض لوگ جو مغرب سے متاثر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی بڑا مشکل دین ہے، فجر پڑھ کے ہٹیں، تھوڑی دیر بعد ظہر آ جاتی ہے، ظہر کے بعد اثر آ جاتی ہے، مغرب آ جاتی ہے، عشاء آ جاتی ہے، دن میں 5 مرتبہ مسجد کے اندر جانا پڑتا ہے، وہاں جا کے عبادت کرنی پڑتی ہے. یہ بڑا اوکھا دین ہے، بڑا مشکل دین ہے، اس پہ عمل نہیں ہو سکتا. حالانکہ ایک بندہ عقل کے ساتھ اس کو سمجھے تو یہ دین ہمارا مشکل نہیں ہے، بڑا آسان ہے. ایک دن کے اندر کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ 24 گھنٹے ہوتے ہیں، اور 24 گھنٹے کے جو منٹ بنتے ہیں وہ 1440 بنتے ہیں. یعنی ایک دن کے اندر 1440 منٹ ہوتے ہیں. اور ہم پر اللہ تعالیٰ نے کتنی نمازیں فرض کی ہیں؟ 5 نمازیں فرض کی ہیں. 5 نمازوں کے جو فرائض ہیں ان کے آپ یعنی منٹوں کو کاؤنٹ کریں تو بڑی مشکل سے 50 منٹ بنتے ہیں. یعنی فجر 2 اثر، فجر کی 2 رکھتے ہیں، 2 کی 4، اثر کی 4، مغرب کی 3، عشاء کی 4. بڑی مشکل سے سارے 50 منٹ بنتے ہیں، بڑی مشکل کے ساتھ. زیادہ سے زیادہ آپ گھنٹہ کر لیں، یعنی 24 گھنٹوں میں سے 23 گھنٹے اللہ کہتا ہے آپ کے لیے ہے، آپ کمائیں، آپ کھائیں، جو مرضی کریں اسلامی حدود کے تحت کہ 1 گھنٹہ مجھے دیں میری عبادت کے لیے. کیا یہ اوکھا کام ہے؟ کیا یہ مشکل کام ہے؟ نہیں مشکل کام. اللہ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، وہ ہمیں کہے کہ 24 گھنٹے میں میری عبادت کرو، ہر وقت میرے لیے سجدہ ریز ہو کے رہو، تو اللہ یہ بھی کہہ سکتا ہے. لیکن اللہ کہتے ہیں 14 سے 40 منٹوں میں سے صرف 50 منٹ میرے لیے. تو نماز پڑھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. جو کہتے ہیں گویا کہ انہوں نے دین کو صحیح طریقے سے سمجھا نہیں ہے، دین کو صحیح طریقے سے مانا نہیں ہے. اسی طریقے سے روزے کے بارے کہتے ہیں جی یہ بڑی مشکل بات ہے. نماز کے اندر بہت کتنی کنسیشن آپ کو ملے گی، کتنی آسانیاں رکھی ہیں. جو کھڑا ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا اسلام کہتا ہے کہ بیٹھ کے پڑھ لے. بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا اسلام کیا کہتا ہے کہ وہ لیٹ کے پڑھ لے. لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا جیسی حالت کے اندر ہے ویسے ہی پڑھ لے. پانی نہیں ہے وضو کے لیے، اللہ کے نبی نے فرمایا مٹی کے ساتھ تیمم کر کے نماز پڑھ لیں. پانی ہے، آپ کے جسم پر زخم لگے ہوئے ہیں، اسلام کیا کہتا ہے تو بھی تیمم کر کے پڑھ لیں، پانی لازم ہے. تو یہ کیا ہے دین اسلام کے اندر آسانی ہے. سردی آ گئی ہے، اسلام کہتا ہے، یہ نہیں اسلام کہتا کہ ہر وقت آپ جرابیں اتارو پھر دو، اگلے وضو کے لیے پھر جرابیں اتارو پھر دو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ وضو کر کے آپ جرابیں ڈال دیں تو 1 دن اور 1 رات یعنی 24 گھنٹے آپ اس کا کیا کریں پھر مسا کر سکتے ہیں. یہ کیا ہے دین اسلام کے اندر آسانی ہے. اسی طریقے سے آپ سفر کے اندر ہیں، سفر کے اندر نماز آدھی ہو جاتی ہے. آپ 20 کلومیٹر 22 کلومیٹر آپ سفر کر لیتے ہیں، اس کے بعد جو 4 رکعات ہیں وہ 2 بن جاتی ہیں. یعنی ظہر کی آپ 2 رکعت پڑھیں گے، عصر کی آپ 2 رکعت پڑھیں گے، مغرب کی 3 ہے 3 رہیں گی، فجر کی 2 ہے 2 رہیں گی. جو 4 رکعت والی ہیں ان کی 2 ہو جائیں گی. یہ کیا ہے دین اسلام کے اندر آسانی ہے. اسی طریقے سے سفر کے اندر 72 گھنٹے آپ کیا کریں گے؟ اپنی جرابوں پہ مسح کریں گے. 3 دن اور 3 راتیں. کتنے گھنٹے؟ 72 گھنٹے. آپ یعنی 1 مرتبہ آپ وضو کر کے جرابیں ڈال لیں، 3 دن اور 3 راتیں اس پہ مسح کر سکتے ہیں. یہ نہیں اسلام کہتا کہ ہر وضو کے لیے اتارو پھر دو پھر پہنو، ایسا نہیں کہتا. یہ کیا ہے دین اسلام کے اندر آسانی. ایسا خوبصورت دین ہے. تو بڑی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کیا رکھی ہوئی ہے؟ آسانیاں رکھی ہیں. بڑا مزیدار دین ہے، بڑا زبردست دین ہے. جو یہ کہتا ہے کہ بڑا مشکل دین ہے اس نے دین کو صحیح طریقے سے سمجھا ہی نہیں ہے. اسی طریقے سے روزے کا معاملہ آپ دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے روزے کو فرض کیا ہے. تو روزے کے بارے یعنی پورے سال کے اندر 29 یا 30 دنوں کے روزے. سال کے اندر کتنے دن ہوتے ہیں؟ 365 دن ہوتے ہیں. 365 دنوں میں سے 29 یا 30 دن اللہ تعالیٰ کو دینا ہے. یہ مشکل کام ہے؟ نہیں مشکل کام. وہ بھی پورا دن بھوکا رہنا ہوتا ہے، 24 گھنٹے بھوکے رہتے ہیں وہ روزہ رکھ کے. کتنی دیر رہتے ہیں؟ صرف سردیوں میں روزے آئے تو 13 گھنٹے، 13.5 گھنٹے، 14 گھنٹے بنتے ہیں. گرمیوں کے اندر اگر روزے آئے تو 16 گھنٹے، 16.5 گھنٹے. یہ نہیں کہا کہ 24 گھنٹے میرے لیے بھوکا رہو، نہیں. صرف طلوع فجر سے لے کے غروب آفتاب سورج غروب ہونے تک رہنا ہے. وہ بھی سال کے اندر صرف 29 یا 30 دن. تو جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں نعمتیں دی، بولنے کے لیے زبان، پکڑنے کے لیے ہاتھ، چلنے کے لیے پاؤں،
सुनने के लिए कान, देखने के लिए आंखें दी, जिसने हमें, हमने क्या मार कर मारा, अल्लाह ताला ने हमें सही बनाया। कितने आप देखेंगे कि पागल हैं जिनका दिमाग काम नहीं करता। मैंने कौन सा तीर मारा है कि अल्लाह ताला ने मेरा दिमाग सही बनाया? ये अल्लाह का शुक्र है, मुझे ऐसा बनाया, ये अल्लाह की नेमत है। कितने आप ऐसे देखेंगे जिनके हाथ काम नहीं करते, पाँव काम नहीं करते, जिस्म के आज़ाद सही तरीके से काम नहीं करते। अल्लाह का शुक्र है, ये अल्लाह की नेमत है, अल्लाह ताला ने हमें सही बनाया है। हालांकि हमने कोई ऐसा काम नहीं किया, कोई ऐसा मार्का नहीं मारा, तो ये अल्लाह ताला की नेमतें हैं। तो अल्लाह ताला का हुक्म मानते हुए पूरे साल के अंदर 29 या 30 रोजे रखना क्या ये मुश्किल काम है? नहीं मुश्किल काम। 24 घंटे भी भूखा नहीं रहना है। कितनी देर रहना है? सिर्फ 16 घंटे, 15 घंटे, बस इतनी देर। और साइंस भी कहती है कि इंसान का जो मैदा होता है ये सूरज के साथ चलता है, लेकिन साल के अंदर 30 दिन ऐसे आते हैं जब इसका मामला उल्ट हो जाता है। यानी फिर इसका मैदा रात को चलता है, चांद के साथ चलता है, सूरज के साथ नहीं चलता। अगर वो दिन के वक्त खाना खाएगा तो बीमार होगा, दिन के वक्त खाना खाएगा तो वो खाना उसकी बीमारी का सबब बनेगा, सेहतयाबी का सबब नहीं बनेगा। तो अल्लाह ताला ने हमारी सेहत के लिए ही क्या रखा है? रमजान। साइंस कहती है वो दिन क्या है जो मुसलमानों के रमजान के दिन है, ये वही दिन है। तो साइंस इस बात से भी क्या है? सेहतयाबी देने वाला ये दिन है। ये इस्लाम ने यानी कितनी ज़्यादा, हम देखिए रोजे के अंदर कितनी ज़्यादा आसानियाँ हैं। आप सफर के अंदर है, इस्लाम कहता है कि रोजा छोड़ सकते हैं। सफर में है, आप जा रहे हैं, इस्लाम कहता है कि रोजा आप छोड़ देंगे, नहीं बाद में रखें। कई आपको वाक़या मिलेंगे, सही बुखारी के अंदर वाक़या है, एक सहाबी गिरा हुआ था, सहाबा ने गिरा यानी इर्द गिर्द डाला हुआ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, पूछा ये कौन है? फरमाया इसने रोजा रखा हुआ है और ये मुसाफिर है। आपने वहां पर फरमाया इसको चाहिए था कि रोजा तोड़ देता, सफर में रोजा रखना कोई नेकी का काम नहीं। इसी तरीके से आप मदीना से मक्का जा रहे थे, फतह मक्का के लिए रमजान के महीने में, तो सहाबा ने रोजा रखा, असर के वक्त सहाबा नडार हो गए, आपने फरमाया रोजा तोड़ दो, सफर है, अल्लाह ने रुख्सत दी है, फिर भी हमने रखा था, अगर पूरा नहीं हो रहा, मुश्किल आ रही है तो रोजा तोड़ दो। तो सहाबा ने नहीं तोड़ा, आपने खुद पानी मंगवाया और पिया, कहा मैंने तोड़ दिया, अभी तुम भी तोड़। फिर भी अक्सर सहाबा ने तोड़ दिया, जब सहाबा ने फिर भी रोजा ना तोड़ा, तो आपने उनको क्या फरमाया था? उलाइकल उसात, ये लोग नाफरमान हैं, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह से रोजा तोड़ रहा हूँ, इन्होंने क्यों नहीं तोड़ा? ये मुझसे ज्यादा नेक आगे। तो ये दीन इस्लाम के अंदर क्या है? आसानियां। सफर कर रहे हैं आप, रोजा छोड़ भी सकते हैं, बाद में बीमार है आप रोजा तोड़ सकते हैं, छोड़ सकते हैं, बाद के अंदर उसको रखें। तो ये दीन इस्लाम के अंदर कंसेशन है। इसी तरीके से ज़कात है, ज़कात के बारे में कहते हैं जी खून पसीने की कमाई हमारी है, कमाते हम हैं, हम किसी को क्यों दें, किसी गरीब को क्यों खिलाएं, किसी फकीर की मदद क्यों करें, किसी बेकस मोहताज की मदद क्यों करें, किसी को हम क्यों दें? कमाया मैंने है, मैं किसी और को क्यों दूं? लेकिन ये जो ज़कात वाला मामला जी बड़ा मुश्किल है, हम नहीं देते, हमसे नहीं दी जाती। लेकिन बंदा इसको भी देखे तो ये कोई अल्लाह ने ज़्यादा नहीं रखी। ज़कात की आप शरह देखें वो कितनी है? 100 रुपए में से 2.5 रुपए, कितने रुपए? 2.5 रुपए। 100 रुपए में से 2.5 रुपए अल्लाह ताला ने कहा मुझे दो, तो 100 में से 2.5 रुपए अल्लाह को देना। 97.5 किसके हैं? हमारे। सिर्फ 2.5 रुपए अल्लाह की राह में किसी गरीब को, किसी फकीर को, किसी मिस्कीन को, किसी भूखे को, किसी प्यासे को देना ये मुश्किल काम है? मुश्किल काम नहीं। तो ज़कात वाला मामला आसान है, ये मुश्किल है? ये भी आसान है। इसी तरीके से हज वाला मामला देखें, हज कहते हैं हज इतना पैसा लग जाता है, बहुत मुश्किल है, नहीं होता, इससे अच्छा है बंदा किसी गरीब को, वहाँ गरीब याद आ जाते हैं, किसी गरीब को दे दी, हज बंदा ना करे, हज बहुत मुश्किल काम है। तो हज भी मुश्किल काम नहीं है। अल्लाह क्या फरमाते हैं? पूरी जिंदगी में एक मरतबा हज करना है, वो भी उसने करना है जिसके बाद उसका पैसा हो, इतने पैसे हो कि वो आसानी से हज कर सकता हो, और उसके पास सेहत भी हो, बीमार ना हो। ये 2 शर्तें हैं, सेहत भी हो, इतना पैसा भी हो कि आसानी के साथ हज के अखराजात अफोर्ड कर सकता हो, फिर उस पे हज फर्ज है, वो भी जिंदगी में एक मरतबा बैतुल्लाह के अंदर जाके। औखा काम है। आप बीमार हैं, जितना मर्जी आपके पास पैसा है, इस्लाम नहीं कहता कि आप पे वो हज फर्ज है। आप सेहतयाब हैं, आपके पास पैसे ही नहीं है, हज करोड़ों का भी हो जाए, जब आपके पास करोड़ों आएंगे तो ही आपका फर्ज होगा, वरना आपका फर्ज है ही नहीं। दीन इस्लाम आसान दी। लोग कहते हैं बड़ा मुश्किल दीन है, ईसाई कहते हैं सब औखा दीन है इस्लाम, हिंदू कहते हैं बड़ा औखा दीन है इस्लाम। बाकी आप देखेंगे मजहबों के अंदर उन्होंने इनकी ऐसी ऐसी चथियां मारी हुई है, अजीब अजीब से काम है जी। हिंदुओं का आप मामला देखें, आप उनके ड्रामे देखते होंगे,
क्योंकि वो सारा अपना मजहब बयान करते हैं उसके अंदर, कैसी कैसी अजीब अजीब सी चीजें, दूध को ज़ाया कर रहे हैं, दूध को गिरा रहे हैं, इसी तरीके से यानी वो मिठाइयाँ लेके जाकर फेंकी जा रहे हैं, थोड़ी सी गाय बाकी फेंक दी, उधर बैठे हुए मंदिरों के ऊपर उनको दे रहे हैं, यानी वो जो है क्या कहते हैं उनके जो बुद्ध है जिनको काली माता कहते हैं, उसके ऊपर पत्थर पड़ा होता है, कितना सालाना तौर पे उसमें यानी वो दूध जो है वो ज़ाया करते हैं, टनों के हिसाब से, मनों के हिसाब से दूध ज़ाया जाता है। ऊपर जो भी कहते हैं ये जो गंगा है इसके अंदर जो नहा लेता है, यानी झील सी बनाई हुई है, उसके अंदर पानी है, इतना गंदा पानी है, दूर से बदबू आती है क्योंकि उसमें पानी निकालते नहीं है, कहते हैं इसके अंदर लोगों के गुनाह है, उसकी बदबू है। कहते हैं जो इसके अंदर नहा लेता है वो सारे पापों से, सारे गुनाहों से पाक और साफ हो जाता है, तो सारी हिंदू उसके अंदर जाके नहाते हैं। इस तरह का उनका दीन है, लेकिन हमारा दीन साफ सुथरा है, खूबसूरत है। और ये दीन मुश्किल है कि आसान है? अच्छा है, बुरा है? तो हमें चाहिए कि जितने भी अहकामात हैं दीन इस्लाम के, उनको खुशी के साथ करें, मोहब्बत के साथ, ताकि अल्लाह ताला हमें जन्नत दे, कामयाबी दे, कामरानी दे, कब्र के अज़ाब से बचाए, जहन्नम की आग से बचाए। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक दे। एक दो ये आपको बातें कहना चाहता हूँ, ये आपके हिजबुल इजलास के हवाले से। अब्दुल रज़ाक भाई ने तकरीर दी है, दूसरे भाई ने तकरीर दी है, इन्होंने जुबानी की है, उन्होंने देख के की है। तो आप कोई भी काम करते हैं, तकरीर करें, खिलाफत करें, नात पढ़ें, सबसे मेन चीज़ होती है कॉन्फिडेंस, खुद एतमादी। जिस बंदे के अंदर खुद एतमादी होती है, उसके पास लफ्ज़ कुछ भी ना हो, सबको उसकी तकरीर जबरदस्त लगती है। ये पंजाबी मौलवी देख लें, एक आयत आती होती है, खुद एतमादी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो एक आयत पर घंटों घंटों बोल जाते हैं। जब वो जाते हैं देर में शायद इतना हो कि एक आयत उसका तर्जुमा और कुछ भी देर में नहीं है, लेकिन खुद एतमादी की वजह से बहुत सारी चीज़ें उनके जहन के अंदर आ जाती है, तो बड़े अच्छे अंदाज के साथ वो चीज़ों को डिलीवर करते हैं, लोगों तक पहुँचाते हैं और बतलाते हैं। एक खुद एतमादी बहुत बड़ी चीज़ होती है। कोई भी आप तकरीर कर रहे हैं, देख के करेंगे खुद एतमादी नहीं आती, जुबानी करेंगे खुद एतमादी आएगी, क्योंकि आपने देखा है देख के कर रहे हैं, ध्यान उधर नहीं है, ऐसे ही है जैसे आप सबक सुना रहे हैं। इसी तरीके से आप इशारे भी नहीं करेंगे, आप दूसरों की तरफ देखेंगे भी नहीं हर वक्त, यानी आपका रहेगा कि मेरा अगर वर्के से ध्यान हट गया तो मेरा नफल इधर उधर हो जाएगा, अगर मेरा कुरान से ध्यान हट गया तो इधर। छोटी छोटी सूरतें पढ़ रहे हैं तो ये भी जुबानी हो सकती है ना, बड़े बड़े जो कारी हैं आगे देख के तो नहीं करते, अक्सर जुबानी करते हैं, तिलावत करें, जुबानी करें, छोटी छोटी सूरतें आपको पहले ही आती हैं, फिर क्या हुआ अगर आप भूल जाएंगे, और मैं 10 मिनट किसी जगह से चले आए, ऐसे ही टक्करें आती हैं, फिर क्या होगा, भूल जाएंगे। बोले जुबानी, तिलावत करें, जुबानी करें, तकरीर करें, जुबानी करें। आपको पता है ये एग्जाम जिन्होंने करनी है उनको पता है कि मैंने करनी है, तो हफ्ता पूरा है, एक दिन में 14 से 40 मिनट 7 करो तो कितने बांधे 1000 तो टापे आते, 1000 तो मेरा था देखो मिनट 1000 मिनट 5 मिनट तकरीर याद नहीं होती, हो सकती लेकिन हम करते नहीं। तो तकरीर जुबानी किए करें, इससे आपके खुद में खुद एतमादी आएगी। जैसे टूटे फूटे इशारे होते इशारे करें, इधर उधर देखिए, अब हमारे जुबान तकरीर के देखता रहा, इशारे नहीं किए, देखा तो है ना, दूसरे ने देखा भी नहीं, उससे वर्के की तरफ देखा है। दूसरा भाई कौन था? अब्दुल भाई, तो ऊपर देख रहा है, जाहिर बात है याद नहीं, ऊपर देखेगा दूसरा देख ही सकेगा। तो जुबानी किया करें, इशारे करने की कोशिश किया